प्लस एनिलीन। तो फिनॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, आपको पता होगा, बेंजीन रिंग पर OH और एनिलीन जो है बेंजीन रिंग पर एमीन। तो ये है फिनॉल और ये है एनिलीन। बेंजीन रिंग पर OH और बेंजीन रिंग पर NH2। एनिलीन और ये बेंजीन रिंग पर OH जो है फिनॉल। तो फिनॉल प्लस एनिलीन, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो भी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके बाद है हेप्टेन और हेक्सेन का मिश्रण या मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड हेक्सेन, वो भी वो आइडियल सॉल्यूशन है। और HNO3 और H2O जो है वो भी क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। वो एग्जांपल उसमें दो एग्जांपल याद रखने, आपने ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम कल बात कर रहे थे डेविएशन की, कि डेविएशन जो होता है वो दो टाइप के डेविएशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, सुनिएगा। देखो, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था कुछ दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे किया था शायद, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन में। या फिर ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था और इधर क्या था, मोल फ्रैक्शन। हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था उसमें आपको पता है हमने A को सॉल्वेंट माना था। तो A का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ था जिसकी स्लोप नेगेटिव थी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, PA बराबर PA नॉट XA को। और एक ग्राफ ऐसा था जो हमने XB के लिए जिसको प्लॉट किया था, ये जो ग्राफ था वो क्या था, PB बराबर PB नॉट XB। ये एक ऐसा ग्राफ हमने प्लॉट किया था। एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू ग्राफ्स or the resultant of these two components which will be like this. This is the resultant of both the graphs P and PB. This is equivalent to PT or PS, whatever the equation, whether in form of XA or in form of XB, you can write over there. So this is the resultant graph. This is the actual graph for an ideal solution, right? This graph is for an ideal solution. The ideal जो सॉल्यूशन आदर्श विलयन है, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन है, उसके लिए ग्राफ है। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, हमने कल एक बात बोली कि द सॉल्यूशंस व्हिच obeys the route flow are known as ideal solutions and it does not obeys it, they are non-ideal solutions. So what is the mathematical expression for Raoult's law in ideal as well as for the non-ideal solution? Now whatever we have discussed till yet, that is for the ideal solution. Means we have discussed about non-volatile solute is mixed into a volatile solvent, the Raoult's second law. In the first law we have discussed about the solute is also volatile and as well as the solvent is volatile. तो solute और solvent जब दोनों volatile है तो उनमें graphical representation, उसके लिए mathematical expression हमने देखा था कि PA is equal to PA not XA, PB equal to PB not XB. This is for the ideal solution, right? Now what happens if a non-ideal solution is there? It means it does not obeys the Raoult's law. So whatever the chemical equation, or like I can say whatever the equation, just like PA is equivalent to PA not XA, PB equivalent to PB not XB. This is what equation for an ideal solution, right? ये इक्वेशन किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। नाउ इफ PA does not equal to PA not XA and PB does not equal to PB not XB, this equation is for non ideal solution. ये इक्वेशन किसके लिए होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो वैल्यू ऑफ PA एज पर राउल्ट लॉ ये इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। जब वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, PA is does not equal to PA not XA and PB does not equal to PB not XB। ठीक है,
अब देखो जब ऐसा होता है तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो पीए इससे बड़ा और या पीए इससे छोटा। आइदर पीए ग्रेटर देन दिस वन और लेस देन दिस वन, the two conditions are there. So on the basis of this equation, है ना, it is greater than or less than, the deviation is of two types, positive deviation and the negative deviation. So this is an ideal graph, right? This is an ideal graph. And what happens for the positive deviation? So that I'm just first we'll talk about positive deviation and what happens. PA is greater than PA naught XA, positive deviation में ऐसे होगा, and PB is greater than PB naught XA. Positive deviation में PA और PB की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, इससे PA naught और PA naught XA और PB naught XB से। अगर इनकी वैल्यू मोर होती है, greater values, then this is a positive deviation. मीन्स जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव डेविएशन में। जितने भी ग्राफ हैं उन सब पर ऐसे ऊपर की ओर डेविएशन आएगा ग्राफ में। So these graphs which are drawn as a dotted line, so these graphs represents positive deviation in a particular non-ideal solution. तो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके शो किया हुआ है कि जो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो क्या बोलते हैं डॉटेड लाइन से जो ग्राफ रिप्रेजेंट किए गए हैं ब्लू मार्कर और समवट ब्लू प्लस ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ PA is less than PA naught XA और वैल्यू ऑफ PB is less than PB naught XA, ठीक है। वैल्यू ऑफ PA ग्रेटर देन PA naught XA PB, ये तो ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे लेस देन है तो ये किसको डिनोट करेगी? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन वाले ग्राफ जो है वो मैं रेड मार्कर से बनाऊंगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब नीचे से, तो ग्राफ कैसे आएंगे? मैं एक ही ग्राफ में बना रहा हूँ सारे, इसलिए आपको जो नीचे की ओर से हैं ग्राफ वो सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो जो रेड मार्क से डॉटेड लाइन है वो है नेगेटिव डेविएशन के लिए, और जो इस साइड का कलर है ये कौन सा है आप देख लेना, ये है पॉजिटिव डेविएशन। और जो डिफरेंट कलर से हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो है आइडियल सॉल्यूशन। भाषा में तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब बोलो। टिल दिस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। यहाँ तक अगर किसी नेगेटिव डेविएशन बता देखो, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि वैल्यूज जो हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं P और PB, अगर ये इक्विवेलेंट होती है इन वैल्यूज की तब तो आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब जो हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है राउंड के अकॉर्डिंग। अब नेगेटिव में क्या होता है कि PA जो है, जो PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर कम आती है, किससे? मोल फ्रैक्शन और जो प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, प्रोडक्ट से। अगर PA और PB की वैल्यू कम है, इससे एक्चुअल वैल्यूज ऑफ राउंड, ये एक्चुअल वैल्यूज ऑफ राउंड है, इससे अगर कम है तो जो ग्राफ है वो नीचे की ओर, जो हमारा आइडियल ग्राफ था उससे नीचे की ओर डेविएशन शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने मान लो ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, तो अब वाला जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे आना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस डेविएशन द ग्राफ विल मूव और ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर साइड। तो ये नीचे की ओर ऐसा पैराबोलिक टाइप का ग्राफ। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा पैराबोला होगा, ऐसा जरूरी नहीं है पैराबोला हो, ये ऐसा भी हो सकता है।
और ये ऐसा स्ट्रेट आकृति ऐसे हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसे था और दूसरे वाला ऐसे था। डेविएशन शो करना चाहिए। एंडिंग पॉइंट अब ये यहाँ भी घूम सकता है और हो सकता है ये ऐसे जाकर के और लास्ट मोमेंट पर एकदम से सडन ऊपर से इंक्रीज हो जाए। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो एक होगा, डेविएशन यहाँ बीच में होगा। वो कैसे भी हो सकता है डेविएशन? तो नीचे की ओर जब ग्राफ शिफ्ट होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। और कोई है? नहीं है कोई? सारे खाली? चलो ठीक, आप ऐसे साइलेंट मोड में आ जाते हो, मैं समझ आता हूँ बच्चों को बहुत समझ में आ रहा है और आपको कितना आ रहा है वो तो आप भी जानते हो। अच्छी बात है, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, समझ में आने भी चाहिए। चलो उसके बाद आता है जो टॉपिक हमें जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, वो बहुत इजी सा टॉपिक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। कौन सा टॉपिक? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। इजी टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक पर बेस। इसको इरेज कर दूं ना? आपकी तो आवाज नहीं आती, मैं समझ आता हूँ आपकी तरफ से ओके। चलो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में तो इसका नाम थोड़ा मॉलिक्यूलर है, तो आप नेम से इसकी डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी में इसका नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा नाम है। अणु संख्यक, अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूलर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, means the properties which depends on the number of molecules of a substance, it does not affected by the nature of substance, then these kind of properties are known as molecular properties। कि अगर किसी substance की properties में changes उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कहते हैं। द प्रॉपर्टीज which are affected by the number of molecules which are present in a solution, but it does not affected by the nature of substances। जो substances है उनकी नेचर पे इसका कोई फर्क, उसकी नेचर से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पे फर्क पड़ता है वो किस चीज से पड़ता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which are there, the number of molecules which are present over there। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ना कि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। बस में आने में ये चीज ध्यान रखना, और इसमें कुछ खास नहीं है। अब इसमें होती कौन कौन सी है प्रॉपर्टीज? अच्छा, कल मैंने एक और बात बोली थी कि ये प्रॉपर्टीज कब डिफाइन होगी? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से कोई भी एक कैसा हो, नॉन वोलेटाइल नेचर का। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से एक कैसा हो, नॉन वोलेटाइल नेचर का, और जब एक नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा, इट मींस सम प्रॉपर्टीज विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखो नॉन वोलेटाइल नेचर का वेपराइज नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने नहीं बनेंगे जितना कि एक वोलेटाइल सॉल्यूट में बनते हैं, या वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो उसमें बनते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने कम होंगे, ज़्यादा होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, उन पे डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूशन की कैसे होगी। तो अब हम आगे बात करेंगे आज कि whatever the properties or what are the type of properties which affected by the number of molecules but does not affected by the nature of substance. So four type of properties that I told you yesterday or the day before yesterday. Four type of properties are there. The first is relative lowering in vapor pressure, and elevation in boiling point, and depression in freezing point, and osmosis. Now first we'll move with the relative lowering in vapor pressure, and this thing we have discussed also in Raoult's law for non-volatile solute.
राउल्स लॉ में जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूज किया था तो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम मैंने आपको बताया था. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर? So somehow there are numericals based on these all four topics, most probably on osmosis. On the four topics, some numericals are there. In those numericals, we need to find out the value of. Keep in mind the value of. Sometimes it will be like Wb means the mass of solute or given weight of solute, and or maybe the molecular weight of solvent. Molecular weight of solvent. Molecular weight of solvent भी बहुत बार कैलकुलेट करवाएगा, या फिर molecular weight of solute भी कैलकुलेट करवा सकते हैं. ठीक है ना? तो इन इतने जो ये न्यूमेरिकल्स हैं आएंगे इस टॉपिक पर बेस, उसे हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए, और थ्योरेटिकल पोर्शन से पहले के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि फार्मूला तो याद हो, तो फार्मूला याद नहीं होगा तो करेंगे कहाँ से? हाँ, कुछ बच्चों के कल मेरे पास मैसेज आए थे कि सर फिजिक्स में जो पीडीएफ वगैरह हमें मिल रही है नोट्स वाली, तो मैंने कल सर को बोल दिया था कि सर आप घर पे एक बार हैंड रिटन लिख लें. अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है इंग्लिश मीडियम के तो वो हैंड रिटन लिखेंगे और वो आप तक पहुँच जाएगा. ठीक है? सो प्लीज नॉट वरी अबाउट दैट. नाउ लेट्स अज्यूम दैट दे आर हैविंग टू कंटेनर्स. ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मेरे को थॉरोली आपको बतानी पड़ेगी. देखो हमारे पास दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर के अंदर सेम लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट है. छोटे छोटे दो कंटेनर हैं. इन दोनों कंटेनर के अंदर सेम लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट है. काला पानी इसके अंदर सॉल्वेंट तो वाटर ही है, प्लस हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, और इसके अंदर सॉल्वेंट भी, इसमें भी सॉल्वेंट वाटर है, बट इसमें हमें वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया. ठीक है? इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट, दोनों ऐड किया. और दोनों में ऊपर से सील पैक नहीं है, ओपन कंटेनर है. एक्चुअली में होगा क्या देखिए, जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसमें अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा होगी या कम होगी? जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसमें अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा होगी, और जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसमें अमाउंट ऑफ वेपर बहुत कम होगी, बोल सकते हैं नेग्लिजिबल. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में तो वेपर किसकी वजह से होगी? सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगी, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से होगी. तो एक बात बताओ कि वाटर लेवल, अब आप अपने जो माइक है उसको अनम्यूट कर लेना बेटा जब आपको आंसर देना हो. ये दो कंटेनर हमारे पास ए और बी, इन दोनों कंटेनर में से ये इन दोनों का वाटर लेवल यहाँ पे सेम था. तो अब आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में जो इस लिक्विड का जो वॉल्यूम जो लेवल है वो किस में तो डिक्रीज होगा और किस में ज्यादा रहेगा? ए बीकर में इंक्रीज हो जाएगा ना, ऑब्वियसली वेपर बन रही है ना उसमें. अच्छा डिक्रीज हो जाएगा, ओके गुड. तो ए बीकर जो है उसमें अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है कि इसके लेवल में क्या आएगी? कमी आएगी. मान लो इसका जो लेवल है वाटर लेवल है वो तो इतना रहेगा, और इसका जो वाटर लेवल है वो इतना रहा. तो इन दोनों में से ये यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो किसका डिक्रीज हो गया? ए का डिक्रीज हो गया. बात समझ? अब ए का जब वाटर लेवल डिक्रीज हुआ मींस इसमें वेपर ज्यादा बनी, वेपर ज्यादा बनी, वेपर ज्यादा बनी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. अगर हम सील करते हैं तो ये बात की बात. अगर मान लो इस कंटेनर को मैं ऐसे करके मेरे मन आ गया, इसको मैंने ऐसे सील कर दिया और इसको भी कर दिया, गुड की बात होती है. ठीक है, ये सीलिंग अच्छी हुई है, ये तो गड़बड़ होगी, जैसे रेडी होगी, कोई बात नहीं चलेगा. ठीक, तो अगर मान लो मैंने दोनों कंटेनर को सील कर दिया तो अमाउंट ऑफ वेपर इसमें ज्यादा है. इट मींस वेपर प्रेशर विल बी मोर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ कंटेनर, राइट?
Now what happens in the container of B? The amount of vapor is less. The amount of vapor is less. Therefore, whatever the vapor which is produced, that is less. If the amount of vapor is less, then what happens? The vapor pressure will be less. It means that what happens if a non-volatile solute is added? If a non-volatile solute is added in the liquid, then there is a decrease. It may be a slight decrease, it may be a greater decrease, whatever there, but there is a decrease in amount of vapor pressure. This decrease in amount of vapor pressure by dissolving non-volatile solute in a solvent is referred as or defined as or represented as relative lowering in vapor pressure. बात समझ आ रही है? अब मैंने आपको ये बता दिया इसको डायरेक्टली, इसमें वोलेटाइल था तो वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर इसमें तो वेपर प्रेशर में एलिवेशन, बट ये तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, इज ऑफ नॉन यूज. नाउ व्हाट्स द यूज ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, देन व्हाट हैपेंस? द वेपराइजेशन कैपेसिटी of non-volatile solute is almost negligible. Then what happens? The amount of vapor is less, which decreases the vapor pressure on the surface of the liquid, and this phenomenon is known as relative lowering in vapor pressure. कि अगर amount of vapor कम है तो pressure कम exert होगा, vapor pressure कम exert होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? relative lowering in vapor pressure. वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन. ठीक है? ये तो ये हमारी theoretical बात. और आपको याद होगा हमने एक कल प्रैक्टिकल बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो आई राइट हियर बाय रेजिंग ओनली दिस वन. इंशाल्लाह ठंड बहुत है. देखो हमें कल एक चीज छोटी सी डिराइव की थी, अगर आपको पता हो, बहुत ही छोटी सी बातें हमने की थी कि xp इक्वलेंट टू PA0 माइनस PS अपॉन PA0. अब आप बोलोगे सर PS कहाँ से आ गया? आपने तो PT बोला था, आप PT लिख लो. नोट्स में आपके PS लिखा है, इसलिए मैंने PS लिख दिया ताकि आप घर पे जाकर जब पढ़ो तो आपको ऐसा नहीं हो कि दिक्कत फील हो. देयर इज नो दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. हमारे को तो ये है, आपको नहीं होना चाहिए. ये हमने राउट्स के सेकंड लॉ, मतलब राउट्स का जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाला जो लॉ था 5 मिनट्स आगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाला जो लॉ था उसके थ्रू हमने पढ़ा था कि xp बराबर PA0 माइनस PS अपॉन PA0 होता है. पढ़ा था ना? अब देखो बेटा xb क्या होता है? nb अपॉन na प्लस nb. अब मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा नंबर ऑफ मोल्स पर, सुनिएगा. xb क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, which is equivalent to PA0 minus PS upon PA0. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. WA या आप किसी भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी WA की वैल्यू फाइंड आउट करके बताता हूँ कि मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको समझ. तो NB, अच्छा NB नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्विवेलेंट होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास divided by given mass of A upon molar mass of A plus given mass of B upon molar mass of B, which is equivalent to PA0 minus PS divided by PA0. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये वाली बात समझ में आ गई? इसको मैं रेज कर रहा हूँ कि आपको आगे छोटा सा बोर्ड चाहिएगा भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए. अब एक बात बताओ बेटा, आपने पढ़ा है sin x का एक्सटेंशन पढ़ा था, है ना? पढ़ते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, sin x, cos x, cot x, tan x, एक्सपेंशन पढ़ते हो उसमें. x प्लस जो भी था x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, जो भी है. तो आप क्या करते हो? जो हायर टर्म्स होती है उनको नेगलेक्ट कर देते हो ना, हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हो ना लास्ट में. तो नेगलेक्ट करते हैं तो कौन सी नेगलेक्ट करते हैं? जो एडिशन में होती है उनको नेगलेक्ट करते हैं.
ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टर्म बची है उसको भी आप नेगलेक्ट कर दो तो वहाँ जीरो हो जाएगा सब कुछ। सुनिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जब सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि WB/MB is very very lesser than WA/MA। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या, WB/MB is very very less than WA/MA। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट जो होती है वो बहुत कम होती है, सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको नेगलेक्ट कर देंगे? इसको नेगलेक्ट कर दें तो ऊपर जीरो हो जाएगा, 0 0 और इनफिनिट, है ना। सो W/MB/WA इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एडिशन है, इसको नेगलेक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट बिकम्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 0। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वालिटी फॉर दिस? WB/MB divided by WA/MA which is equivalent to PA0 minus PS divided by PA0। ये आपको पता है ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लो, WB/MB into WA multiplied by MA, ये MA ऊपर चला जाएगा, PA0 minus PS upon A। यस बेटा बोलो, कौन सी बेटा? ये ओके करता हूँ। चलो आज यहीं तक कर लेते हैं, इस पॉइंट तक ही, ये आपको अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं। लास्ट 1 मिनट इज देयर। देखो बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से हमें बताया कि सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है। अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है तो अमाउंट ऑफ W भी बहुत कम होगी, गिवन रेट ऑफ सॉल्यूट। अगर ऊपर क्वांटिटी कम है नीचे ज्यादा है तो वैल्यू और ज्यादा कम आएगी ना। 4/2 और 2/4 कौन सी वैल्यू कम होगी? 2/4 ऊपर वैल्यू। अब उसमें क्या WB/MB है तो MB हो सकता है बहुत ज्यादा हो। मान लो आपने फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया तो ये 392 हो जाता है, लेकिन ऊपर आपने 13 ग्राम लिया, ये 392 है तो बहुत कम वैल्यू आएगी ना। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर ऊपर वैल्यू कम है और नीचे ज्यादा है वैल्यू कम आएगी, और सॉल्यूट की अमाउंट वैसे ही कम होती है तो सॉल्यूट की कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, मॉलिक्यूलर वेट तो चाहे जितना मर्जी हो तो ये वैल्यू होगी वो WA की कंपैरेटिवली WB की वैल्यू कम होती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरेटिवली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऊपर वाले को आपने जीरो क्यों नहीं किया, ऊपर वाले को नेगलेक्ट क्यों नहीं किया? आपको मैंने अभी भी बोला कि जब भी हम किसी क्वांटिटीज को नेगलेक्ट करते हैं तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे ही होनी चाहिए, बट वो जो भी न्यूमेरिकल डिजिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको वो अकेले नहीं होनी चाहिए। x upon y upon x plus y plus x power 4 upon y power 4। So we can neglect here x power 4 by y power 4 in comparison with x upon y। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये जो अकेली टर्म है जो ऊपर है तो उसमें ऐसा है कि ये जो अकेली टर्म्स है जो ऊपर पड़ी है, नीचे वाले टर्म्स की इसके कंपैरेटिव इसको नेगलेक्ट किया है तो ये वैल्यू अकेली नेगलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये होगी तो ऊपर 0 बन जाएगा। बात समझ आ गई क्या कविता? ठीक है, तो अभी हम कल यहाँ तक आपको याद रखना है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। आई विल नॉट राइट ऑल दीस 3 और 4 स्टेप्स प्लीज, बिकॉज़ हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं क्लास के लिए। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वापस इसको पढ़ेंगे। आज जो मैंने जितना भी आपको बताया है और जो डेरिवेशन ये जो 1-2 हमने पहले किए हैं, चाहे राउट ला हो चाहे कैसा भी हो, प्लीज इनको 2 बार 3 बार करके देखें घर पे, तभी ये चीजें समझ में आएगी, वरना स्किप हो जाएगी रिमार्क्स। ओके, थैंक यू।